بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. معزز حاضرین، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور یہ موقع ہمارے لیے انتہائی مسرت کا، خوشی کا اور اللہ کی شکر گزاری کا ہے، کیونکہ کرونا کی وبا کے سبب ہم پچھلی 3 عیدیں اپنے گھروں کے اندر اختیار کرتے ہوئے آئے ہیں، جس کا ہم تمام کو انتہائی رنج ہے، غم ہے، الم ہے، اور تاریخ کے صفحات سے ان ایام کو ہرگز نہیں بھلایا جا سکتا. لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنی مسجدوں میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہماری صالح نیتوں کو قبول فرمائے. معزز حاضرین، میں بات کو طویل کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے کہ ذی الحجہ کا جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کے احکام، اس کے واقعات اور اس کے فضائل الحمدللہ ہمارے علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن آج کے اس دن کا سب سے بنیادی پہلو ہے، اس پہلو کو اگر ہم اپنی زندگی میں لا لیں تو ہماری زندگی کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے. اور اسی معاملے میں ہم سب پیچھے نظر آتے ہیں، اور اسلام اہل ایمان کو خطاب کر کے بار بار اسی حکم کی تعمیل دیتا ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ. ہماری عیدوں کا بنیادی مقصد تقوی اختیار کرنا ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ گوشت پوست اور قربانی کے جانور نہیں مانگتا، بلکہ وہ اس حکم کے ذریعے سے تمہارا تقوی آزمانا چاہتا ہے. اس تقوی کو ہم سمجھنے کی کوشش کر لیں. اکثر ہم ایمان تو لاتے ہیں، لیکن تقوی کا جو معاملہ ہے اس تقوی کے معاملے کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ ہمارے اعمال کا بیلنس ہے. جس طریقے سے ترازو کے 2 پھلے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کو بیلنس کرنے والی ایک زبان، ایک کانٹا ہوتا ہے. وہی کانٹا ہمارے لیے تقوی کا کام اختیار کرتا ہے. اگر ہم تقوی کو ہماری زندگی سے ہٹا دیں تو کافروں کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. لیکن بنیادی عنصر یہ ہے کہ جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا ہے،
वहां तुरंत अहले ईमान वालों को तकवे का हुक्म दिया है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता इस तकवे को छोड़ते जा रहे हैं। हमारे अंदर जहां इबादत की सुस्ती नजर आती है, मामलात के अंदर खयानत नजर आती है, इसी तरीके से माशी जिंदगी और माशरती जिंदगी में भी तकवे की बहुत ज्यादा कमी हमारे अंदर है। और यही तकवा जब कम हो जाता है, हमसे गुनाह मासी सररद हो जाते हैं और हमारा दिल इताअत इलाही की तरफ हरगिज रुजू नहीं होता। उम्मत मुस्लिमा में कुर्बानी का एक ट्रेंड बनता जा रहा है आलमी सतह पर, और ऐसे ममालिक पर जो गैर अरब ममालिक हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के अंदर, कि वो लाखों और करोड़ों के जानवर कुर्बान कर रहे हैं, जिनको देखकर भी ताज्जुब होता है। लेकिन हमें यह सोचना है, क्या इससे हम अल्लाह तबारक व तआला को खुश कर सकते हैं? नहीं। क्या हमारा रब इतना कमजोर है कि हमारी इस अदा से अल्लाह ताला खुश हो जाएगा? नहीं। लेकिन एक बात याद रखें, इस अदा से जो मकसूद है, उस अदा को अपने दिल में हम पैदा करने की कोशिश करें, वो है तकवा। जब इसकी हलावत हमारे दिलों में आ जाती है, इसका फहम हमारे दिलों के अंदर समा जाता है, तो फिर हमारी जिंदगी उस तरीके से हो जाती है जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सहाबा के नक्शे कदम पर हमारी जिंदगी चलती है। सहाबा के नुकूश पर चलने के माने ये नहीं है कि जबान से मैं कह दूं कि सहाबा के नुकूश पर चलें, लेकिन मेरा किरदार सहाबा के तर्ज पर नहीं है, तो फिर यह तकवे की हलावत भी नहीं है। आप देखें, मासी और गुनाह की वो कौन सी कैफियत थी जो इस्लाम लाने से पहले तमाम सहाबा में नहीं पाई जाती थी। आप पढ़ कर देखिए सहाबा की जिंदगी को, माक़बल इस्लाम उनकी जिंदगियां क्या थी, लेकिन इस्लाम लाने के बाद जो इनकलाबी तब्दीली उनकी जिंदगियों के अंदर आई, वो सिर्फ तकवे का पैकर थी, वो सिर्फ तकवे का तकादा करती थी। यही चीज हमारी जिंदगी में चाहिए, यही मतलूब है, और जब तक यही चीज हमारी जिंदगियों में नहीं आएगी, उस वक्त तक हम अगियार की ठोकरों के अंदर पड़े हुए रहेंगे। आज लोग बहुत कहते हैं, लेकिन उन तमाम मामलात के अंदर, तमाम हिकायतों और अक़वाल के अंदर बुनियादी चीज यह है कि अगर तुम तकवा इख्तियार कर लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला सरफराज फरमाएगा। यही अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम है, यही ईद उल फितर का पैगाम है। दूसरी बात जो मैं आपके सामने आज के इस खिताब में कहना चाहता हूं, वो ये है, मेरे भाइयों, मुल्क के बदलते हुए सियासी हालात पर हमारी अच्छी तरीके से गहरी नजर हो। आज के जो हालात बनाए जा रहे हैं, उन हालात को हम समझने की कोशिश करें। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यह है, तमाम मुसलमानों की, दीनी जमातों की और सियासी जमातों की, मुस्लिम सियासी जमातों की जो मुसीबत यह है, वो ये कि दीनी जमातें सियासत में दाखिल होना नहीं चाहती, और सियासतदान मुसलमानों को जिस तरीके से चाहे ताश के पत्तों की तरह इस्तेमाल करते हैं। हम ये देखें कि इस वक्त मुल्क का और हमारे इलाकों की जो सूरत हाल बदलती जा रही है, उस सूरत हाल का गहराई से जायजा लेने की जरूरत है। आने वाले हमारी औलाद के और हमारे तारीख मुस्तकबिल की राहें हमारे सामने बताई जा रही है। चाहे वो किसी भी तरीके से हो, मुसलमान चंद चीजों से खुश होने वाला नहीं होता, बल्कि उसकी खुशी अल्लाह की खुशी में है, और उसकी रजामंदी अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी में है। हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, उससे हमें क्या सरोकार, लेकिन जहां तक हमारे हुकूक की बात है, उन हुकूक की पासदारी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज करने की कोशिश करूंगा। इस वक्त मुसलमानों की सूरत हाल दरख्त के उन झड़े हुए सूखे पत्तों की तरह है, जिन्हें हवा का कोई भी रुख उड़ा कर ले जा सकता है। ऐसी मिसाल पर आज हम आकर खड़े हुए हैं। इसीलिए बेवक़ा जिंदगी 18 करोड़ मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर होती नजर आ रही है। हर लिहाज के अंदर हमारे मदारिस पर नजर रखी गई, हमारे वो स्कूल जो मादरी जबान की बुनियाद पर कायम किए गए थे, हमारी मादरी जबान का आहिस्ता आहिस्ता खात्मा कर दिया गया। वो वायदे वो वफाएं जो हुकूमतें हमारे साथ करती हैं, जिससे हम खुश होते हैं, वो वायदे वफा आज हमारे साथ नजर नहीं आते। इसके माने क्या है? इसके माने ये है कि वह इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, कि अगर तुम अपने आप को नहीं बदलोगे, अल्लाह ताला एक ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह की मुती और फरमाबरदार रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यह हालात हमारे ईमान का इम्तिहान है, इस पर वावेला करने की जरूरत नहीं। इससे हम रुजू इल्लाह करने की कोशिश करें, रुजू इल्लाह करें। इस वक्त सारी की सारी
इस वक्त हमारे पास लाकर ठोकर पर खड़ा कर दिया गया है। दुनिया ये चाहती है, बल्कि हमारे मुल्क के सियासतदान ये चाहते हैं, ऐसा मुसलमान हिंदुस्तान में तैयार हो जो नाम से मुसलमान हो और उसकी रूहानियत इस्लाम से खाली हो। ऐसा मुसलमान मुल्क के अंदर जरूरी बनाया जाएगा कि कैसे मुसलमान हो कि मालूम हो नाम है मुसलमान का लेकिन रूह इस्लामी नहीं, और इस्लाम को इस डगर पर लाने की कोशिश की जा रही है जैसे हिंदुओं ने अपने मजहब को पंडितों के हवाले कर दिया और हमारे दीन को चंद मुजावरों और मशाइकीन के हवाले कर दिया जा रहा है। क्यों? ताकि हम उनके मोहताज बन के रहे, दीन की तालीम अमली जिंदगी में न रहे। अब ये हालात, इस हालात का मुकाबला करना यह हमारी जिम्मेदारी है, और ये हालात क़ुव्वत और ताकत की बुनियाद पर नहीं बदले जा सकते, बल्कि ये हिकमत अमली की बुनियाद पर बदले जा सकते हैं। जैसे हसन दर्जे की हदीस के एक अल्फाज हैं कि जिसमें एक मक़ौला है, यह मक़ौला है किसी सहाबी का, जिसमें फरमाया गया अल हिकमतु दालतुल मुमिन हैसु वजदहा फहुवा अहक्कु बिहा। हिकमत और दानाई मोमिन की गुमशुदा चीज है, जहां मिल जाए उसको हम हासिल कर लें, ये पहली बात। और दूसरी बात, अभी आप देखेंगे फिर एक मामला हमारे मुल्क में शुरू किया गया, वो ये है कि अभी यूपी की ऐवान में एक एजेंडा ये पास किया जाने वाला है कि आबादी की कसरत को रोकने के लिए कुछ जो है कवानीन तैयार किए जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सियासी जमातें इस जानिब या बात मुआफ़क़त कर रही है और बात मुखालिफत कर रही है, और बराह रास्त इसका निशाना मुसलमान रहेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल से मीडिया यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आइंदा जो सदी आएगी वो मुसलमानों की सदी हिंदुस्तान में रहेगी, जिस पर बहुत वावेला और बहुत मबाहिस चल रहे हैं। एक बात आप याद रखने की कोशिश करें, इस पर तशवीश करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन भी यह एजेंडा पास किया जाएगा, अल्लाह की तरफ से एक बात जरूर आएगी कि वो मुल्क तरक्की की राहों से जमीन पर इस तरीके से गिरेगा जैसे इकबाल ने कहा था, सुरैया से जमीन पर आसमान ने तुझको दे मारा। बस यही सूरत हाल होगी। क्यों? आज की जितनी तरक्की है, चाहे वो साइंस की तरक्की हो, आबादियों की तरक्की हो, तालीम की तरक्की हो, मईशत की तरक्की हो, ये सारे के सारे इनकलाबात बढ़ती हुई आबादी का नतीजा है। बढ़ती हुई आबादी का नतीजा है। आबादी बढ़ेगी, वसाइल बढ़ेंगे, ज़राए बढ़ेंगे, इख्तिराआत बढ़ेंगी, साइंस की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। हर जमाने में ऐसे ही हुआ। अगर आबादी को रोक दिया जाएगा तो फिर हमारे मुल्क का भी वही हाल हो जाएगा जो इस वक्त इटली का हाल हो रहा है। जहां हुकूमत यह कह रही है नौजवानों से कि तुम कसरत औलाद पर तवज्जो दो, हम चाहते हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा औलाद पैदा करो। क्यों? इसके जरिए से हम तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे, उनकी तालीम, उनकी रिहाइश, उनकी नौकरी। क्यों? इटली में या तो सबसे बड़ी उम्र के लोग बसते हैं या फिर ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीच का जनरेशन वहां से गायब हो गया। अगर यही सूरत हाल रही तो थोड़े सालों के अंदर वो मुल्क खत्म भी हो सकता है या दूसरे ममालिक के कब्जे में भी आ सकता है। इसीलिए मेरे भाइयों, ये बात हम अच्छी, क्योंकि हमेशा से ये बात हमारे सामने कही जा रही है। अब मुसलमान होने के नाते शरई नुक्ते नजर इसमें क्या है, उस बात को मैं आपके सामने रखता हूं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की एक मिसाल कि हजरत याकूब की 12 औलाद थी। 12 औलाद थी याकूब अलैहिस्सलाम की। सबसे छोटे यूसुफ थे और उनसे पहले 11 थे। लेकिन आप देखें, जब कहसाली आई, दुनिया को मुश्किल हुई, मिस्र भूख से तड़प रहा था और उनके पेशिन गोई कर दी गई कहसाली की, तो वो 12वां बेटा मुल्क को बचाने वाला बना। मुल्क को बचाने वाला बना। इस्लाम ये तरबियत देता है कि जो भी औलाद होगी, अल्लाह उसकी तकदीर क्या लिखा है सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं मालूम, सिवाय किसी को नहीं मालूम। वो किस तरीके से रहेगा, वो नेक रहेगा, बद रहेगा, वो खुशहाल रहेगा, बदनसीब रहेगा, ज़हीन रहेगा, गबीर रहेगा, ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है। इसीलिए हमारे मुल्क को कौन बचाएगा ये हमको नहीं मालूम। आने वाली नस्लों में से कोई ना कोई होगा
जो मुल्क की तरक्की के लिए उस तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से तालीम याफ्ता बड़े बड़े लोग हमारे मुल्क में किए हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये वो चीज है जो मुसलमानों को हैबत ज़दा करना चाहती है, हैबत ज़दा करना चाहती है। लेकिन हम भी ये बात पर ईमान रखते हैं, कसरत तादाद से अल्लाह ताला गलबा अता नहीं करता, तक़वे के मेयार पर अल्लाह तबारक व तआला गलबा अता फरमाता है। कि कितनी ही बड़ी बड़ी कौमें हैं, कितनी ही छोटी छोटी जमातें हैं जो बड़ी जमातों पर गलबा हासिल कर लिए। क्यों? तक़वे की वजह से, सलाहियत की वजह से। इन हालात पर भी हमारी नजर रहे, हम इन हालात को आसानी के साथ लेने की कोशिश ना करें। क्या होगा देखा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आखिरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाइयों, हम में के बहुत से खुशहाल हैं, बहुत से सरमाएदार हैं। आज वो जमाना हमारे मुल्क में आ गया है जो मुकाबला आरई का जमाना है। यह सरमाएदाराना जमाना है। यहाँ गलबा ताकत का नहीं है, यहाँ गलबा दौलत का है, तिजारत का है, ताकत का है, माशी इस्तेहकाम का है। इसीलिए अब जरूरत है मुसलमानों को कि किसी के कदमों पर गिरने के बजाय हम मरकजी तिजारतों पर अपनी तवज्जो को मबजूल करवाएं, मरकजी तिजारतों पर हम अपनी तवज्जो को मबजूल करवाएं। एक बात कहता हुआ मैं अपने किताब को खत्म करता हूं, बड़ी बुनियादी बात। आज हम इसराइल की सबसे ज्यादा मुखालिफत करते हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि हम इसराइल की मुखालिफत करते रहें। वो एक गासिब मुल्क है, लेकिन आपको उस मुल्क की तरक्की का भी अंदाजा करना चाहिए। दुनिया में उसको कबूल करने वाले इतने ममालिक हैं जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है, लेकिन अक्सर ममालिक ने इसराइल के कब्जे को कबूल नहीं किया। लेकिन क्या बात है, आज पूरी दुनिया इसराइल की मुट्ठी में नजर आती है, पूरी दुनिया इसराइल की मुट्ठी में नजर आती है। अब मुसलमानों को उससे सबक हासिल करने का वक्त आ चुका है। आज फलस्तीनी काज में जो नाकामी हो रही है वो फलस्तीनियों की गैर दानिशमंदाना हरकतों का नतीजा है। उन्होंने अपने आप को मुस्तहकम करने के बजाय जो रविश अख्तियार की, उस रविश ने आज उनको खत्म करके रख दिया। इसराइल की 48% जमीन आज 12% बच गई। क्यों? यही तरीका है, यही तरीका है इसराइल का। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं वो बात जो बुनियादी ये है, आज पूरी दुनिया में निजाम तिजारत को कायम करने वाली सबसे बड़ी मल्टीनेशनल 3000 कंपनियों का महवर है इसराइल। आपको ताज्जुब होगा, वो मुल्क ऐसा नहीं है कि डरा रहा है और हम इसको ऐसे ही निस्त नाबूद कर देंगे। आपको मालूम होगा 13 साल की उम्र में वहां उनकी औलाद को हाइकर बनाया जाता है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उस इसराइल में ग्रेजुएशन करने वाले को मुलाजमत उस वक्त तक नहीं दी जाती जब तक कि वो एक कंपनी को कायम करे या कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम ना बनाए, उसको डिग्री नहीं दी जाती। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए, उन नौजवानों के लिए मैं सबक आमोज बात कहना चाहता हूं जो मोबाइल को अपनी जिंदगी बना चुके हैं, जो मोबाइल को अपनी जिंदगी बना चुके हैं। कहते हैं कि मोबाइल इनकलाब का दरिया है, नहीं, कौमों की तबाही का दरिया है ये मोबाइल। आपको मालूम है मोबाइल की इजाद करने वाला इसराइल है और इसराइल का कोई बच्चा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता। एप्लीकेशन वो बनाते हैं, इस्तेमाल हम करते हैं। क्या बात है, क्या हम हमारे मुल्क में ऐसे ही गालिब आएंगे? नहीं। आज 10 सरमाएदार हमारे मुल्क को हैक करे हुए हैं और वो कमजोर कौमें, वो बास कमजोर कौमें जो आज हमारे मुल्क में अपना लोहा मनवा चुकी हैं, उनका बुनियादी सबब यह है कि वो मईशत में सबसे ज्यादा मुस्तहकम है। और आज हम कह रहे हैं 4% का रिजर्वेशन हो, मुसलमानों को तरक्की के जराए का नहीं, आप तिजारत करो। जमीन की तिजारत से लेकर आसमान तक जब तक कब्जा किसी मुसलमान का नहीं होगा वो जमीन पर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। एक छोटी सी मिसाल, तेल खाने वाले हम, तेल बनाने वाले गैर मुस्लिम, कपड़ा पहनने वाले हम, कपड़े की कंपनियां गैर मुस्लिमों की, चावल खाने वाले हम, चावल पैदा करने वाले गैर मुस्लिम। और क्या बड़ी बात आपको बताऊं, जानवर जुबाह करने वाले हम, जानवर बेचने वाले वो। आज आप नतीजा देख सकते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के कई घरों से कुर्बानी के उन जानवरों को जो छोटे जानवर है, बकरी की शक्ल में है, घरों से घुसकर पुलिस लेकर गई कि तुम कुर्बानी ना कर लो, तुम कुर्बानी ना करो। क्यों? जानवर बेचने वाले हम होते, जानवर पैदा करने वाले हम होते, जानवर की अफजाइश हमारे पास होती तो ये
چیز ہمارے لیے طاقت ہوتی، لیکن اب ہم دوسروں کے دست نگر بن گئے۔ ہمارے بھائی جو زمینوں کے کاروبار میں پڑے ہوئے ہیں وہ فیکٹریاں قائم کریں، اپنی اولاد کو کمپنیوں کی طرف لے کر آئیں، ورنہ یہ تاریخ مستقبل کی دلیل ہے۔ اس مستقبل سے ہم کبھی بھی نکل نہیں سکتے اور لڑ نہیں سکتے، اور اللہ نہ کرے وہ وقت اگر ہمارے اوپر آئے گا، رشیا کا مسلمان 70 سال تک جیسے پریشان تھا، ہندوستان کا مسلمان بھی صدیوں تک ویسے ہی پریشان کیا جائے گا۔ کیوں؟ کچھ نہیں ہے آپ کا، کچھ نہیں ہے آپ کا۔ کچھ بناؤ میرے بھائی، کچھ بناؤ تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ ایک بات، اگر مسلمان چند سالوں کے لیے بڑا جانور کھانا چھوڑ دیں یا خریدنا چھوڑ دیں اور ہماری بہنیں سونا خریدنا چھوڑ دیں، اس قوم کو گھٹنوں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے، اس قوم کو گھٹنوں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ جب تک حکمت عملی کے تحت ان کے مقابلے میں ان کے کمزور طبقات کو کھڑا نہیں کیا جائے گا، ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل تاریک نظر آئے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا۔ ہم دعا کر لیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم احفظنا عن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم احفظنا عن بلاء كورونا، ربنا اكشف عنا الرجز إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون۔ الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر کرم فرما، یا رب العالمین ہمارے مصیبتوں کو دور فرما، آنے والے تاریخ حالات سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی نسل کشی سے میں حفاظت فرما، اے اللہ غیار کے دیدہ تر ہونے سے ہمارے مسلم امہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مساجد اور ہمارے مدارس کی تو نگہبانی فرما، یا رب العالمین ہمیں عقل حلال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما، یا رب العالمین ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ ہلاکت قید امراض سے امت مسلمہ کی نگہبانی فرما، یا رب العالمین ہماری مجلس میں جو بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، اے اللہ جناب عبدالحق صاحب، عبدالرب صاحب اور جناب خالد صاحب، اے اللہ یہ ہمارے مسجد کے مصلیان ہیں، ذمہ داران ہیں، اے اللہ یہ بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرما، شفا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں بہت سے بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفا عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ بڑی بیماریوں سے امت مسلمہ کی نگہبانی فرما، اے اللہ آج ہم تیری رضامندی کے لیے قربانیاں دیں گے، اے اللہ ہماری قربانیوں کو تو قبول فرما، اے اللہ بڑی محنت کی کمائی اور بڑی مشقت سے ہم تیری رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہماری قربانیوں کو تو مسترد نہ فرما، یا رب العالمین ہم سب کو اسلام کا شعور نصیب فرما، دین کا شعور نصیب فرما، یا رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما جو اس وقت ہم زبان حال سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی سے عروج اور بلندی کی طرف لے آ، اے اللہ کافروں کے آگے اے اللہ ہم لوگوں کو مجبور اور لاچار نہ بنا، اے اللہ تو ہماری معیشت میں برکت عطا فرما، اے اللہ معیشت کے مستحکم بیان کر دے، اے اللہ ہمارے نوجوان جو تعلیم یافتہ ہیں اے اللہ ان کی معاشی نظام کو تو درست فرما دے، اے اللہ ہمارا دل تیری اطاعت کے لیے پھیر دے، تیری بندگی کے لیے پھیر دے، اے اللہ نمازوں سے دی لگانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری بہنوں کو اسلام کا شعور نصیب فرما، اے اللہ ہماری بہنوں کو اسلام کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اولاد تو مستقبل روشن کر دے، اے اللہ ہماری اولاد کو قوموں کا امام بنا، اے اللہ ہماری اولاد کو قوموں کا رہبر بنا دے، یا رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب کو عید الاضحیٰ کی عید کی مبارک بادی دی جاتی ہے۔
تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم.